students, welcome to the course of IC engine and compressor. In the continuation of last lecture, today we are going to start full stroke CI engine, that is compressed ignited engine, or it is also known as diesel engine. आप साइड में सकते हैं ब्रैकेट में diesel engine. It is also known as constant pressure engine or constant pressure cycle. In the previous lecture, we go through the four-stroke spark ignition engine, in which we saw that different process, different stages or different stroke, that is suction, compression, expansion, and stroke. In this four-stroke, we discuss about 5 different stages, that is suction, compression with the combustion, एक्सपेंशन एंड स्ट्रोक. कंप्रेशन के साथ हम लोग वहाँ पे क्या देखे थे, कंबसन में देखे थे. ठीक है, उसमें हम लोग ये देखे थे कि इनिशियल स्टेज में, सक्शन स्टेज में एयर और फ्यूल का मिक्सचर हम लोग सक कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ पिस्टन. जो इंजन था वो सक कर रहा था विद द हेल्प ऑफ पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, एंड देन from BDC to TDC, compression stage or compression stroke started. At the end of compression stroke, that is just on the TDC top dead center, a spark is ignited from spark plug. ठीक है, तो वहाँ पर हम स्पार्क प्लग की सहायता से स्पार्क इग्नाइट करते थे और फिर वहाँ से एक्सपेंशन स्ट्रोक, इट इज ऑल्सो नोन एज पावर स्ट्रोक, उसको हम लोग पावर स्ट्रोक बोलते हैं. पावर स्ट्रोक वहां से स्टार्ट होता था एंड लास्टली वी कम टू द लास्ट एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इन विच इनलेट वाल्व इज क्लोज एंड एग्जॉस्ट वाल्व इज ओपन. यहाँ तक हम लोग पिछले बार देखे थे. पिछले बार हम लोग पीवी डायग्राम देखे थे, प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम. इस टाइप का था, 0 1 2 3 4 and 5. 0 to 1 suction, 1 to 2 compression, 2 to 3 heat addition process. 2 to 3 में हम देखे थे कि वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है बट प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज करता था. 3 to 4 एक्सपेंशन एंड 4 to 1 एग्जॉस्ट और 4 to 5 एग्जॉस्ट. ठीक है, यही प्रोसेस कंटिन्यूसली रिपीट होता था. अब इसी कंटिन्यूएशन में आज हम देखेंगे कंप्रेस इग्नाइटेड इंजन. इट इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ इंजन, बट मोस्ट ऑफ द सिमिलर और सेम टू द स्पार्क इग्नाइटेड इंजन, एसआई इंजन, और एट वी सी फ्रॉम द डायग्राम कांस्टेंट वॉल्यूम इंजन. यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे जब हीट एडिशन प्रोसेस हो रहा है तो वहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम मिल रहा है हमको, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हो रहा है. इसके वजह से इसका नाम क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर. ठीक है, बिफोर गोइंग टू द सीआई इंजन, फर्स्ट मेक ए schematic diagram for engine on each and every step or stroke.
साथ साथ बनाते रहेंगे ताकि हमारा टाइम बच जाए। First is suction stroke. Second, compression stroke. Third, expansive stroke. And fourth, exhaust. Here again it's similar to though it is similar to spark ignition engine, the stages are similar, but there is very slight difference. Slight means we can also tell it a big difference that it differs from spark ignition engine. At the last, we can see that comparison between spark ignited and compression ignited engine. Here we see that in suction stroke only air, not air and fuel mixture. If we remind our spark ignition engine, a fresh charge, that is the mixture of air and fuel, is sucked from our system, but here only a fresh air is sucked from atmosphere, not fuel. Understand? Now, when air is sucking from atmosphere, inlet valve is open and exhaust valve is closed. From TDC to BTC, it goes down, and at the BTC, both inlet valve and exhaust valve is closed. Here at the initial stage, inlet valve is open and exhaust valve is closed. But when our piston reaches BTC, inlet and exhaust valve is closed and only air is compressed. Air compressed and goes up to top dead center TDC. Now, if you recall our spark ignition engine, when the piston reaches TDC, a spark is ignited at the instant when the piston reaches TDC, a spark is ignited and combustion takes place. But in the case of CI engine, there is absence of spark. There is absence of spark. So the air is compressed up to TDC, and when it about to move down, means from TDC to BDC. Now it is about to move down, that is from TDC to BDC.
of fuel is injected with the help of fuel injector. With the help of fuel injector. At the instant fuel is injected, the highly compressed air is get ignited. Got the point? At the instant the fuel is injected, the highly compressed air is get ignited and combustion takes place. Combustion takes place, and lastly, when the combustion stops and piston reaches BDC, then exhaust valve is opened and piston start moving from BDC to TDC, and the burning air and fuel is get into the and get out of the system, that is our engine regiment, to the atmosphere for the exhaust. So our CI engine is very much similar to our SI, that is spark ignition engine, but with the some difference. With the some difference. What are difference? Let's discuss. आप लोग ये समझ में आ गया होगा, आई होप. सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, यहाँ तक सेम प्रोसेस है जो हमारे एसआई इंजन में था. दिक्कत कहाँ पे, डिफरेंस कहाँ पे है? वहाँ पे एसआई इंजन में एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर हम लोग देते थे इनिशियली, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एयर का मिक्सचर इनहेल होगा, अंदर आएगा और पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे जाएगा. ठीक है, बॉटम डेड सेंटर पे आ गया. अब ये सक करके बीडीसी पे आ गया, बीडीसी से ये टीडीसी तक इसको कंप्रेस करेगा. ठीक है, कंप्रेशन कहाँ तक हुआ? टीडीसी पे. और दोनों वाल्व क्या है? इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व हमारा क्या है? क्लोज है. ठीक है, एसआई इंजन में क्या था? एट द इंस्टेंट टीडीसी पे जैसे ही पहुंचा था, वहां पे स्पार्क हम लोग इग्नाइट कर रहे थे विद हेल्प ऑफ स्पार्क इग्निशन और स्पार्क प्लग. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग का एयर फ्यूल मिक्सचर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एयर है. एयर को हम हाईली कंप्रेस कर लिए. अभी देखेंगे कितना अप टू क्या कंप्रेशन रेशियो होता है, वो अभी डिस्कस करेंगे हम लोग. एसआई में क्या होता है, सीआई में क्या होता है. कंप्रेशन यहाँ तक हो गया, बट एट द इंस्टेंट piston is about to move from TDC to BDC, a fuel is introduced in the system with the help of fuel injector. ठीक है, फ्यूल इंजेक्टर की सहायता से हम लोग फ्यूल इंट्रोड्यूस किए सिस्टम में, और ये कहाँ पे बर्निंग हुआ, कंबशन स्टार्ट हो गया, और ये पिस्टन हमारा अगेन टीडीसी टू बीडीसी मूव करने लगा. ठीक है, इसको हम लोग पावर स्ट्रोक बोलते हैं. पावर स्ट्रोक, यहाँ पे हम लोग को पावर मिला है. ठीक है, नाउ व्हेन आवर पिस्टन रीचेस बीडीसी, देन एग्जॉस्ट इज स्टार्ट एंड exhaust valve is opened. Now exhaust valve is opened and the piston move from BDC, bottom dead center, to BDC, and whole air and fuel mixture comes out from the system, and now the again same process start. अंडरस्टैंड? यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा. चलिए, फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग एसआई इंजन एंड सीआई इंजन वो नोट डाउन करेंगे. ठीक है, तो स्टार वाइज आप नोट करेंगे. स्टार वाइज में क्या है? पहला स्टार, आप 4 स्ट्रोक सीआई इंजन इज सिमिलर टू द 4 स्ट्रोक एसआई इंजन, बट जो यहाँ पे सब्जेक्ट हैं वही हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, बट it operate at much higher compression ratio. समझ में आया? कंप्रेशन रेशियो हमारा सीआई इंजन में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एसआई इंजन. कितना होता है वो भी देखा जाए अभी. द कंप्रेशन रेशियो ऑफ एसआई इंजन इज बिटवीन 6 to 10. ठीक है, शुरुआत में देखे थे कंप्रेशन रेशियो क्या था. ठीक है, पहले सेकंड लेक्चर में हम देखे, सेकंड वीडियो में आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कंप्रेशन रेशियो क्या था. दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे.
6 से 10 के बीच में होता है। 10 हमारा मैक्सिमम है कंप्रेशन रेशियो फॉर एसआई इंजन। कंप्रेशन रेशियो 6 to 10 है फॉर एसआई इंजन एंड कंप्रेशन रेशियो 16 to 20 है फॉर सीआई इंजन। ठीक है, 16 से 20 है सीआई इंजन के लिए। नाउ इन सीआई इंजन ड्यूरिंग सक्सेशन स्ट्रोक एयर इज इंट्रोड्यूस ऑफ ए फ्यूल एयर मिक्सचर। सॉरी, in CI engine in succession stroke air is introduced and not air fuel mixture यानी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एयर ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, एयर फ्यूल मिक्सचर नहीं रहेगा। ठीक है, एक चीज और बताना भूल गए हम। ठीक है, ड्यूरिंग द हीट एडिशन प्रोसेस, कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, at the instant our piston is about to move from TDC to BDC, fuel is injected at the instant where pressure is constant। ठीक है, वहां हम देखे थे फ्यूल जब ऐड हो रहा था तो वॉल्यूम कांस्टेंट किया गया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि जब फ्यूल को इंजेक्ट किया जाए, यानी विद हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्टर प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं, यानी हीट एडिशन इज टेकिंग प्लेस एट द कांस्टेंट प्रेशर। समझ में आया? चलिए, वैसे इसको हम आगे देखेंगे पीवी डायग्राम के थ्रू, घबराने की बात नहीं है। चलिए, और क्या यहाँ पॉइंट हम समझ चुके हैं। ड्यू टू हाई कंप्रेशन रेशियो employed, the temperature at the end of the compression stroke is sufficiently high to self-ignite the fuel which is injected into the combustion chamber। ठीक है, यानी इतना हाईली प्रेशराइज कर देते हैं हम लोग फ्यूल को, और उसकी वजह से टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि जैसे ही हम लोग फ्यूल दिए, एट द इंस्टेंट वी आर गिविंग द फ्यूल, it gets self-ignited। So, our SI spark ignition engine is not self-ignited, but the CI engine is self-ignited engine। कभी कभी एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन which one is self-ignited, so our answer is diesel engine, CI engine और constant pressure engine। समझ में आया? तो ये हमारे क्या है, सेल्फ इग्नाइटेड। ये डायग्राम बना लेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं पीवी डायग्राम, इसका सीआई इंजन का। स्टेप सबको पता होगा, पीवी डायग्राम पर छोटा सा है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। B and B 0 to 1 2 3 0 1 2 3 4 and last again 5। ठीक है, तो ये पीवी डायग्राम किसका है, सीआई इंजन का। सक्शन स्ट्रोक 0 to 1 क्या हो रहा है, सकिंग ऑफ ओनली एयर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एयर सक करेंगे। बार बार हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बार बार हम लोग फोकस कर रहे हैं कि कंप्रेस इग्निशन इंजन में क्या होता है, एयर को सक करते हैं। तो 0 to 1 यहाँ पे एयर सक किए, 1 से 2 यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन कैसे पता चल रहा है, यहाँ देख रहे हैं वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होते होते हम कहाँ पहुंच गए, फिर टीडीसी पे। यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर। यहाँ पहुंच गए हम लोग, वॉल्यूम अब डिक्रीज हो गया। एट द इंस्टेंट जैसे ही हम लोग टीडीसी पहुंचते हैं और पिस्टन इज स्टार्ट मूविंग डाउन,
उसी इंस्टेंट पे हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। फ्यूल इंजेक्शन मतलब दो आवर सिस्टम इज एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट द इंस्टेंट वी इंजेक्टेड द फ्यूल इट गेट इग्नाइटेड। क्या हो गया, अब इसमें इग्निशन स्टार्ट हो चुका है। इग्निशन स्टार्ट होने के बाद ये टीडीसी टू बीडीसी पाएगा। कहाँ पे इग्निशन स्टार्ट हो गया, 2 to 3। और यहाँ हम देख रहे हैं प्रेशर तो कांस्टेंट है, समझ में आया। हम लोग ऐसे समय पे दो आवर वॉल्यूम इज एक्सपेंडिंग बट प्रेशर इज कांस्टेंट। उसी स्टेट पे हम लोग फ्यूल को इग्नाइट करते हैं। उसी स्टेट पे कब, यहाँ पे हम देख रहे हैं वॉल्यूम तो हमारा इंक्रीज कर रहा है बट प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। उसी टाइम पे 2 to 3 क्या हो गया, हीट एडिशन प्रोसेस हो गया। देन अगेन 3 to 4 एंड देन 4 to 1 प्रेशर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। 3 to 4 हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टीडीसी टू बीडीसी आएगा एंड देन 4 to 1 यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर हमारा सेम प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पीवी डायग्राम फॉर सीआई इंजन। एक कंपैरिजन के लिए देख लेते हैं पीवी डायग्राम फॉर एसआई इंजन। याद तो होगा लेकिन फिर भी एक कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग। जीरो 1 2 3 4 एंड अगेन 5। ये क्या है, पीवी डायग्राम फॉर एसआई एंड फॉर सीआई। दोनों में कंपैरिजन करते चलेंगे, हमारी आसानी होगी। यहाँ पे 2 to 3 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, और यहाँ पे हीट एडिशन हो रहा है, हीट एडिशन हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे 2 to 3 क्या है, कांस्टेंट हमारा प्रेशर है और हीट एडिशन हो रहा है। समझ में आई बात, ठीक है। अब जो लिखना चाहते हैं स्टेप के बारे में, अभी तक हम लोग क्या किए, कंपैरिजन देखे हैं एसआई इंजन सीआई इंजन, अलग अलग स्ट्रोक देखे हैं, सक्शन कंप्रेशन एक्सपेंशन स्टॉप एग्जॉस्ट, पीवी डायग्राम देख चुके। अब जो ये लिखना चाहते हैं सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, एक्सपेंशन में, कंप्रेशन में, एग्जॉस्ट में क्या होता है, वो लिखेंगे अभी लाइन बाय लाइन स्टार बना के। तो टॉपिक डालेंगे सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या है, एयर एलोन इज इंजेक्टेड। जैसे ही जैसे हम वर्ड बोलते रहेंगे वैसे वैसे आप लोग ये डायग्राम देखेंगे और आप लोग के दिमाग में आ जाएगा कि सर क्या बता रहे हैं। ठीक है, एयर एलोन इज इंडक्टेड ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक। जो एयर है वो अकेले, नॉट एयर फ्यूल मिक्सचर। ठीक है, हम लोग क्या करें, इंडक्ट कर रहे हैं। राइट डाउन, एयर एलोन इज इंडक्टेड ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक। ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक इनलेट वाल्व इज ओपन एंड एग्जॉस्ट वाल्व इज क्लोज्ड। क्या होता है, इनलेट वाल्व हमारा ओपन होता है और एग्जॉस्ट वाल्व क्या होता है, क्लोज होता है। नेक्स्ट आगे टॉपिक डालिएगा कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या है, एयर इंडक्टेड ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक, एयर इंडक्टेड ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक इज कंप्रेस इनटू द क्लियरेंस वॉल्यूम। कहां तक पहुंच गए हम लोग, वो जो डिस्कस किए थे, क्लियरेंस वॉल्यूम इसको क्या कहते हैं हम लोग, सक करते करते, सॉरी कंप्रेस करते करते कहां पहुंच गए, फ्रॉम टीडीसी टू टीडीसी। और टीडीसी के बाद कोई जगह ही नहीं है तो हम क्या करते हैं, कंप्रेशन सॉरी क्लियरेंस वॉल्यूम दिया हुआ है वहां पे, एयर और फ्यूल का मिक्सचर इन द केस ऑफ एसआई इंजन एंड द ओनली एयर इज कंप्रेस्ड इन द केस ऑफ सीआई इंजन। लिखेंगे एयर इंडक्टेड ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक इज कंप्रेस्ड इनटू द क्लियरेंस वॉल्यूम, बोथ द वॉल्व्स रिमेन क्लोज ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक। दोनों वाल्व क्या है, क्लोज रहेंगे स्ट्रोक के दौरान। एक्सपेंशन स्ट्रोक लिखेंगे, टॉपिक डालेंगे एक्सपेंशन स्ट्रोक। इसमें लिखेंगे फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट नियरली एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म हुआ उसी इंस्टेंट पे हम क्या कर रहे हैं, फ्यूल को इंजेक्ट कर दे रहे हैं विद द, ठीक है, द रेट ऑफ इंजेक्शन इज सच दैट, ये पॉइंट स्टार के लायक है। ठीक है, स्टार के साथ इसको लिख सकते हैं आप लोग, उसी में एक्सपेंशन स्ट्रोक में स्टार बना के लिखेंगे द रेट ऑफ इंजेक्शन इज सच दैट द कंबशन मेंटेन्स प्रेशर कांस्टेंट इन स्पाइट ऑफ द पिस्टन मूवमेंट। ठीक है,
रेट ऑफ इंजेक्शन ऐसे होगा जैसे कंप्रेशन क्या करेगा, प्रेशर को कांस्टेंट रखेगा, दो वॉल्यूम इज एक्सपेंडिंग, ठीक है, वॉल्यूम इज एक्सपेंडिंग in spite of piston movement on its expansion stroke increase the volume। समझ में आया? The fuel engine बार बार इसे फोकस कर रहे हैं, बार बार क्योंकि यानी बच्चे परेशान होते हैं, दिक्कत होती है उनको। At the instant fuel is injected, the combustion maintains the pressure in such that the pressure is constant and in spite of piston movement of the in spite of piston movement on its expansion stroke increases the volume। समझ में आया? वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है, उसके बावजूद भी कंबशन में प्रेशर को मेंटेन किया गया है। एंड लास्ट एग्जॉस्ट स्ट्रोक, द पिस्टन ट्रैवल, इसको लिखते रहेंगे, द पिस्टन ट्रेवलिंग फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, पिस्टन BDC to TDC travel किया, the piston traveling from BDC to TDC pushes out the product of combustion, the exhaust valve is open and intake valve is closed। इस केस में क्या है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन है और इनलेट वाल्व क्या है, क्लोज है। Last, now we are going to compare our CI engine and SI engine, very important topic। इंटरव्यूअर हम लोग से यहीं से क्वेश्चन पूछता है। If you are going for an interview, then interview favorite question is the comparison between SI and CI engine। Comparison between SI and CI engine। यहाँ पे बोर्ड को हम लोग तीन भाग में डिवाइड करेंगे। यहाँ लिखेंगे SI इंजन, यहाँ पे लिखेंगे CI इंजन। इस साइड होगा डिस्क्रिप्शन। देखते रहेंगे आप लोग, जैसे हम लोग वर्डिंग लिखेंगे वन बाय वन आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला क्या है, बेसिक साइकिल, ठीक है। बेसिक साइकिल क्या होता है साइकिल के लिए, सबको पता है, ऑटो साइकिल, ठीक है। दूसरा नाम क्या देखे थे, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस, ऐसे मतलब पूरा यहाँ पे हीट एडिशन प्रोसेस, ठीक है। बेसिक साइकिल क्या है, ऑटो साइकिल या कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस। सीआई इंजन में क्या है, इसको डीजल इंजन के नाम से जानते हैं। डीजल इंजन और एयर कांस्टेंट वॉल्यूम, एसआई इंजन कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस, ठीक है। ये क्या हो गया, बेसिक साइकिल। दूसरा क्या लेंगे हम लोग, फ्यूल। फ्यूल कौन सा यूज करते हैं हम लोग, जनरली गैसोलीन। एंड गैसोलीन भी कौन सा, जो वोलेटाइल हो। आप लोग को ये पता है वोलेटाइल फ्यूल। You know that petrol
इज हाईली वोलेटाइल। कैसे पता चलेगा? कभी आप उसको ओपन में रखेंगे और कुछ देर बाद देखेंगे उस बर्तन में या उस जगह पे हमारा पेट्रोल गायब रहता है। क्यों होता है? क्योंकि वो हाईली वोलेटाइल होता है, उड़ जाता है, वेपोराइज हो जाता है। ठीक है, साइलेंट हमारा क्या है? नॉन वोलेटाइल या डीजल। यहाँ पे गैसोलीन है, यहाँ पे ये डीजल है एंड नॉन वोलेटाइल। ठीक है, इंटरव्यूअर हम लोग को इसमें कंफ्यूज करता है वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल में। ठीक है, तो समझ में आ गया? पेट्रोल डीजल सब जानता है, लेकिन वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में इंटरव्यूअर हम लोग से यहाँ क्वेश्चन पूछता है। थर्ड, और क्या कंपेरिजन कर सकते हैं हम लोग? इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूल। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूल। ठीक है, कैसे फ्यूल इंट्रोड्यूस करते हैं? शुरुआत में एयर फ्यूल मिक्सचर, एट इनिशियल क्या रखते हैं? सक्सेस फ्लो। ठीक है, यहाँ पे कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग फ्यूल को? लास्ट में एक्सटेंशन स्ट्रोक जैसे स्टार्ट होता है वहां पे with the help of fuel इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर की सहायता से हम लोग यहाँ पे फ्यूल को इंट्रोड्यूस करते हैं। और क्या है? लोड कंट्रोल। ठीक है, कैसे लोड कंट्रोल करते हैं हम लोग? ठीक है, लोड कंट्रोल कैसे करते हैं हम लोग? इन द केस ऑफ एसआई इंजन थ्रोटल वाल्व की सहायता से। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इंजेक्टर की सहायता से हम लोग लोड कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे इंजेक्टर की सहायता से और क्या कंपेरिजन हो सकता है? बेसिक साइकिल, फ्यूल इंट्रोड्यूस, लोड कंट्रोल, इग्निशन, कंप्रेशन रेशियो। इग्निशन कैसे होता है यहाँ पे? इन द केस ऑफ एसआई इंजन यहाँ पे स्पार्क प्लग की सहायता से। But in the case of CI engine, we know that it is self-ignited. Self-ignition। और क्या कर सकते हैं? कंप्रेशन रेशियो। Compression ratio, as we are already discussed, 6 to 10 for SI engine and 60 to 20 for CI engine, highly compressed. Last, thermal efficiency. For efficiency, thermal efficiency SI engine की कम होती है as compared to CI engine। SI engine की कम होती है as compared to CI engine। क्यों? क्योंकि लोअर कंप्रेशन रेशियो हमारे यहाँ पे कम है, उसके वजह से 6 से 10 यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो, यहाँ पे क्या होगा? थर्मल एफिशिएंसी लेस सीआई इंजन कंप्रेसर यहाँ चल रहा है, यहाँ पे हाई। ठीक है, स्पीड की बात किया जाए, लास्ट है स्पीड। इसकी स्पीड ज्यादा होती है।
स्पीड हमारा एसआई इंजन की ज्यादा होगी, हाई। क्यों हाई होगी? क्योंकि जो होल सेटअप है हमारा वो हल्का होता है एज कंपेयर टू सीआई इंजन, और ये लो होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज सीआई इंजन का टॉपिक, compressed ignition engine and the comparison between SI engine and CI engine. From tomorrow we are going to start two-stroke engine, that is a comparison. Nowadays two-stroke engine is vulnerable type, but though it is in our syllabus and we have to know, so that a better comparison will be there for four-stroke and two-stroke engine. Thank you.